Good morning, students. Today I am starting a new chapter, dictionaries. Before this chapter, we studied about list, string, tuple. These are the sequences, and we store the data in a sequential manner. Here, slightly different. We can. This is also a collections of data, but it is a unordered list. The important point is it is a unordered list. So we start now. Python provides various options to store multiple values under one variable name. हमने अभी देखा था कितने भी suppose a multiple, if you want to store multiple values like name of students or marks of the students or anything in a single variable name, under the single variable names. For example, list. How to create a list? Just we write the name of the variable and then equal to and then आपका square brackets and then the contents. So this is the list. So we store the data in multiple values under a single variable name. Similarly, in the case of string, and same as in tuple. Dictionary is also collections like string, list, and tuple, but it is an unordered list. It is a very versatile data types. There is a key in it and value. इसके अंदर आपके पास दो होंगे, key और value. Whereas in list we have index number and value, but here we have key and value. आप KV के स्टूडेंट्स हैं तो KV से याद रखिए, की KV केंद्रीय विद्यालय से आप याद रखिए की होगा और V से वैल्यू होगा. तो इसमें हमेशा दो चीजें होंगी, वन इज की एंड अनदर इज वैल्यू. Dictionary are a mutable data types and it is an unordered collection in the form of key values. लिस्ट, स्ट्रिंग्स वगैरह भी हमने पढ़ी हैं, तो इनको हमने अलग अलग सीक्वेंसेस में रखा है. ऐसी डिक्शनरी इज द म्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू. इन लिस्ट, इंडेक्स इज द वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, वेयर एज इन डिक्शनरी की इज द वैल्यू इज इम्पोर्टेंट. बस आप ये ध्यान रखिए. हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी. फर्स्ट थिंग, हाउ टू क्रिएट. To create a dictionary, it is needed to collect a pairs of keys values in curly braces. ये जो curly braces हैं, इनके अंदर आपको डेटा रखेगा. Whereas in case of list, we stored in square brackets. What is the syntax? Dictionary name of the dictionary, suppose D, and key and then value, comma, key and value, comma, key and value, and then close the curly braces. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, राजीव मैथ्स, कॉलन लगा के हमने की और वैल्यू में सेपरेशन किया एंड नेक्स्ट की एंड वैल्यू को लिखने से पहले कॉमा हमने अप्लाई किया. एपीए फिजिक्स, एपीएस केमिस्ट्री, एसबी सीएस. So these are the names and these are the subject names. In above example, key value here राजीव मैथ्स एंड इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया यहाँ पे. वो which one is key and which one is the value. So first one is key and second one is always value. I think clear. Some other example. Suppose we want to create an empty dictionary. Name of the dictionary. Suppose dict1 and then only curly braces. It means it is a created empty dictionary. Day of month. These are the day of month. January 31 February हमने इसको वो किया है. कौन सा मंथ कितने का होता है, तो मंथ का नेम आपका की हो गया और वैल्यू उसकी नंबर ऑफ डेज हो गए. So this is one of the example. Furniture count, table 10, chair 13. These are the another example of furniture dictionary. So you can create its own dictionary as per your choice, as per your requirement. Sometimes dictionary is also known associative array and or mapping of or hash. Keys should always be immutable. वैसे तो हम कह रहे हैं डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, बट द कीज को शुड ऑलवेज बी इम्यूटेबल. आपको हमेशा की इम्यूटेबल होगा जबकि वैल्यूज आपका म्यूटेबल होगा. इफ यू वांट टू ट्राई टू इम्यूटेबल, इट शोज एरर. मीन्स आप वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कीज को एक बार आपने डिसाइड कर दिया, देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड. एक्सेसिंग अ डिक्शनरी. To access the value from dictionary, we need to use a key. Similarly, we use to index to access the value from a list. We get the key from the pair of key and value. For example, if you execute the following, teachers Rajiv.
टीचर्स में राजीव, तो इसने मैथ्स प्रिंट कर दिया उसका। तो जो आपका अगर उसके अंदर आप अपना कीज लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट राजीव टीचर्स राजीव, देन दिस इज द राजीव टीचर्स मैथ्स। ठीक है, इस टीचर से राजीव प्रिंट हो गया और इससे मैथ। वी हैव टू सेलेक्ट द राजीव एंड ऑन प्रिंटिंग इट मैथ गॉट प्रिंटेड। अनदर एग्जाम्पल, जिस सपोज दीज आर द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल एंड प्रिंट डी वोवल 2, तो वोवल 2 आपका क्या है ई, तो ई प्रिंट हो जाएगा। इफ यू एक्सेस नॉन केवल इट सोर्स एरर, अगर हम जैसा की उसमें डालते हैं जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो एरर जनरेट करेगा। जैसे इस केस में क्या है, ओवल 5 अवेलेबल, तो यू प्रिंट हो जाएगा। ट्रेवल्सल ऑफ अ डिक्शनरी, ट्रेवल्सल मीन हाउ, अगर हम लूप के थ्रू उसको प्रिंट करना चाहें तो हाउ टू इट ट्रेवल्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 5 एंड नंबर ए स्ट्रिंग एंड 1 टू टपल। देखो हमने टपल भी डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दिए यहाँ पर, तो 1 एंड 2 इज टपल है आपकी, तो टपल को हम हमेशा किस में रखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, और डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। तो फॉर के इन डी, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट के, और ये 1 बाई 1 जाएगा। तो पहले के की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी जो डी में है, फिर उसके बाद उसकी, तो के में आपका 5 आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड की हमारी क्या है ए, जब ये लूप आगे बढ़ेगा तो आपका ए आ जाएगा, एंड थर्ड की क्या है 1 बाई 2, तो यहाँ पे तो की आ गया, और की वैल्यू पे कैसे प्रिंट किया, डी के, तो ये नंबर स्ट्रिंग टपल, इसका नंबर स्ट्रिंग टपल। तो थ्रू लूप वी कैन इजिली प्रिंट द डिक्शनरी। अनदर एग्जाम्पल, अब कीज और वैल्यूज के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द डिक्शनरी, ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब हम डी डॉट कीज करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी कीज है उनको प्रिंट कर देगा। तो कीज कौन सी है, वोवल 1, वोवल 2, वोवल 3 एंड वोवल 5। इसी तरह से सेम डी डॉट वैल्यूज, तो ए ई यू, तो ये और आपके वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। फीचर्स ऑफ डिक्शनरी, पहले भी आपको मैंने बताया, अनऑर्डर्ड सेट्स, डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ की एंड वैल्यू, कोई ऑर्डर नहीं होगा उसका, नॉट अ सीक्वेंस, जस्ट like list, string and tuple. It is not a sequence because it is a collection of unordered elements, whereas the sequence is a collection of index number to keep them order. Keys are used to indexing because according to Python, key can be immutable type. String and numbers are immutable types and therefore can be used as a key. मतलब हम हमेशा string and numbers को ही keys बनाएंगे। Example of keys as under 0, 1, 2, ये देखिए, ये आपका, तो T0 का क्या आएगा, कीज 0, D1 का कीज 1, D3 का इसका की एज ए स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू को लेगा। की ऑफ अ डिक्शनरी शुड ऑलवेज बी अ इम्यूटेबल टाइप लाइक नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल। कीज जनरली इम्यूटेबल। सम फीचर्स ऑफ डिक्शनरीज, कीज शुड बी यूनिक, हमेशा ये देखता है, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं लेकिन कीज कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। वैल्यूज ऑफ 2 यूनिक कीज कैन बी सेम। डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, हेंस वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कीज। ठीक है, वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, उस डिक्शनरी का नाम लिख लीजिए, सपोज डी हमारी डिक्शनरी का नाम है, और कीज उसका जो भी इंडेक्स नंबर है, सपोज हमने जी जो भी उसका कीज है, और उसकी नई वैल्यू आप जो भी डालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के करते हैं, जैसे ये डिक्शनरी है तो D3, तो थर्ड की, इसके अंदर में थर्ड का की में हमने क्या है, दिस इज ए स्ट्रिंग, जबकि क्या लिखा था, की एज ए स्ट्रिंग, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया उसने, की एज ए स्ट्रिंग को दिस इज स्ट्रिंग्स। Internally, it is stored as a mapping. Its key value are connecting to each other via an internal function called hash function. Such process is linking is known as mapping. This process is known as mapping. Working with dictionary. और कितने तरीके से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। Here we will discuss about the operations of dictionaries like element adding. अगर डिक्शनरी को आपको 2 डिक्शनरी अगर आप आपस में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, तो हाउ इट विल बी डन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन तो मैंने शुरू में भी बताया था। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो बिल्कुल उसको इनिशियलाइज की तरह दोनों कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में रख लीजिए, तो आपका तो एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज लगेंगे तो वो उसी नेम से इनिशियलाइज्ड हो जाएगी। इनिशियलाइज का मतलब इट कंटेन्स सम वैल्यूज। एम्प्लॉय नेम्स, तो ये इनिशियलाइज्ड होगी इन वैल्यूज के साथ, और अगर इसके अंदर कुछ नहीं लगा तो वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। तो ये आपको ये डिक्शनरी इनिशियलाइज्ड होगी।
Additions. Value appear in empty dictionary. There are two ways to create an empty dictionary. एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है एम्प्लॉय डिक्ट. देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए एम्प्टी डिक्शनरी. कर्ली ब्रेसेस डायरेक्ट डाल लीजिए या डिक्ट एक वर्ड एम्प्लॉय कर डिक्ट एक वर्ड है उसके थ्रू आप बना सकते हैं. क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी विद अ पेयर ऑफ नेम्स एंड वैल्यूज. डिक्ट इज द कंस्ट्रक्टर. ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होता है. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद द पेयर्स ऑफ की एंड वैल्यू. दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर दिस. Employee dict name Ramesh, salary 10,000, age 25. Employee name Ramesh age and these are the values. By specifying the comma separated values. और आप इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे दिया, तो इसके थ्रू भी आप डिक्शनरी बना सकते हैं डिक्ट के थ्रू. By specifying key and value separately. और इस तरह से बना सकते हैं. जिप एक साथ हमने दिया नेम सैलरी एज और मुकेश एक साथ उसकी वैल्यूज आ गई, तो ये आपका इस तरह से भी एक अनदर वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी. बाय गिविंग की वैल्यू वेयर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट सीक्वेंस लाइक दिस नेम सैलरी 40 एज 23 एम्प्लॉय. तो ये आपका ये तीन चीजें आ गई और उनकी वैल्यूज आ गई. सिमिलरली बाय पासिंग टपल्स आप डाल सकते हैं. टपल डाल दिया तो उसको उसने एज डिक्शनरी के फॉर्म में देखा, तो आप किसी भी टपल्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. एडिंग एन एलिमेंट इन अ डिक्शनरी. अगर कोई एलिमेंट आपको ऐड करना है, यू जस्ट राइट द न्यू की एंड वैल्यूज, तो आपका ऐड होगा. कैसे? एम्प्लॉय में पहले हमारे पास ये था और नेम सुमन, सैलरी 17,000 एंड एज 21. नाउ हमने क्या उसमें एक डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सेल्स. तो अब देखो क्या हो गया, नेम सुमन, सैलरी 17, एज 20 एंड डिपार्टमेंट सेल्स. नेस्टिंग का मतलब होता है डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी. एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी. तो देखो यहाँ पे एक हमने मुकेश लिया, उसके अंदर एक और डिक्शनरी ले लिया एज 23 एंड सैलरी. इस तरह से सेम मीना उसका रिकॉर्ड डिक्शनरी. फॉर की नया एम्प्लॉय प्रिंट एम्प्लॉय की और उसको हमने लूप के थ्रू प्रिंट करके दिखा दिया, तो बिल्कुल इस तरह से आउटपुट आपका आ जाएगा. अपडेशन, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसकी की के थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं. कैसे? एक सपोज दिस इज द डिक्शनरी और एम्प्लॉय सैलरी. इस की सैलरी जो की है उसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है. 10,000 की जगह हमने 15,000 लिखना है. तो जस्ट राइट द नेम ऑफ द की एंड देन द वैल्यू एंड देन प्रिंट, तो ऑटोमेटिकली चेंज्ड. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्स एम्प्लॉय एज अ की एंड देयर सैलरी एज अ वैल्यू. तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करिए पहले और उसके बाद इसको प्रोग्राम बना के कंप्यूटर में रन करिए. मतलब आपको करना क्या है, एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर कुछ नेम्स होंगे एम्प्लॉयज और उनकी सैलरी उसकी, लेकिन आपको रन टाइम में अगर आप ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर. डिलीशंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी. अगर आपको डिक्शनरी डिलीट करना है कोई पर्टिकुलर की और वैल्यू को किस तरह से किया जा सकता है. की तो वैसे इम्यूटेबल है और वैल्यूज इम्यूटेबल है. Following two syntaxes are delete an element from the dictionary. For deletions, key should be there. Otherwise, Python will give an error क्योंकि वो immutable है. Delete dictionary और key. It will delete the value. मतलब है हम लिख तो यहाँ की रहे लेकिन उसकी वैल्यू को डिलीट करेगा and does not return any deleted value. For example, हमने पवन को डिलीट कहा यहाँ पे, तो पवन को डिलीट कर दिया तो आपका बचा ये दो चीजें. इसी तरह से डॉट पॉप से भी कर सकते हैं. डॉट पॉप से वो क्या करेगा, आपका 12,000 एंड 20 है तो ये एमपी पॉप राकेश किया, तो नाम अगर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाला करेगा, लेकिन नाम दिया हमने तो ये इस वाले पोर्शन को रिमूव कर देगा. 12,000 को ये रिटर्न करता है वैल्यू, ये रिटर्न नहीं करता है. ठीक, तो ये नॉट फाउंड आ जाएगा अगर डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है और आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं. डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी. अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करना है मेंबरशिप ऑपरेटर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं. तो इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, पवन इन ईएमपी ट्रू आ जाएगा. जिस फॉल्स उस केस में आएगा जहां पर हरी जैसे नाम अवेलेबल नहीं है तो उस केस में तो इजी वन है. प्रिटी प्रिंटिंग है, जनरली उसे जरूरत नहीं है, बट लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिंट करना है, क्रिएटिव अट्रैक्टिव वे में प्रिंट करना है, देन यूज जेसन मॉडल. और इसको किस तरह से करना है, ये आपकी वैल्यूज है. और प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स ईएमपी इंडेंट 2. इंडेंट 2 का मतलब थोड़ा आगे से, ये थोड़ा सा आगे से प्रिंट करेगा, तो अट्रैक्टिव वे में थोड़ा सा अच्छा सा लगे तो उसके लिए एक
प्रिटी प्रिंटिंग बोलते हैं उसको। तो इंडेंट 2, जितना आप इस नंबर को बढ़ाएंगे उससे थोड़ा आगे से प्रिंट होगा। प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी बाय काउंटिंग वर्ड्स इन अ लाइन। आप एक प्रोग्राम बनाइए, उसमें पहले कोई स्टेटमेंट्स डाला है मैंने, उसको स्प्लिट करके उसमें काउंट करिए कि कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है अगेन प्रोग्राम। इसमें जरूरी नहीं है कि आप डम जैसन का प्रिंट करिए, उसका अट्रैक्टिव प्रिंटिंग का इसको नॉर्मल प्रिंटिंग से भी आप कर सकते हैं। So there are some other functions, important functions. len, it returns the number of key values. तो यहाँ पर 3 थी की वैल्यू, तो 3 आ गया। क्लियर से आपको पूरी डिक्शनरी को हटा देगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो क्लियर कर देगा। कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज द फंक्शंस टू क्लियर द डिक्शनरी, टू रिमूव द ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, यू जस्ट राइट द क्लियर फंक्शंस। गेट, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द गिवन की। emp.get राकेश, तो उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने गेट राकेश लिखा, अगर पर 1 लिखेंगे तो 30,000 आ जाएगा। अब ये 3 चीजें, आइटम्स, कीज और वैल्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आइटम्स करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, कीज अगर हम करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, वैल्यूज करते हैं तो क्या। इन दोनों में क्लियर है, कीज में कीज प्रिंट होंगी और वैल्यूज में वैल्यूज प्रिंट होंगी, और इसमें दोनों ही चीज होती है प्रिंट। emp पर देखो 3 कीज वैल्यूज हैं, और माई लिस्ट इसमें हमने इसमें डाल दिया emp आइटम्स। तो आइटम क्या करेगा, दोनों चीजों को प्रिंट कर देगा, कीज और वैल्यूज को दोनों को प्रिंट कर देगा। लेकिन जब हम डॉट कीज लिखेंगे तो केवल कीज प्रिंट कर देगा, और जब हम डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो केवल वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। बस ध्यान रखिए, आइटम्स में दोनों प्रिंट होते हैं। अपडेट merge the pair of keys and value of dictionary into another dictionary. Changes and additions in this possible as per need. देखो ये 2 डिक्शनरी है, employee1 and employee2, और हमने क्या किया, अपडेट emp1 डॉट अपडेट emp2। तो emp1 में क्या था, नेम शिया, सैलरी 45,000 और एज 24 और डिपार्टमेंट सेल्स। और emp2 में क्या आ गया, नेम शिया, सैलरी 45,000, डिपार्टमेंट सेल्स। तो क्या हुआ कि यही दोनों जगह, क्योंकि emp2 में तो ये था ही पहले से, emp1 में भी वो चीजें आ गई। ठीक है, तो ये चीजें वो नेम उसने ओवरराइट कर दिया। इन द अबव एग्जांपल वी कैन सी दैट द चेंजेस इज डन इन द वैल्यूज ऑन सिमिलर कीज वेयर एज द डिसिमिलर कीज गॉट ज्वाइंड विद द वैल्यू। सिमिलर की में तो उसने उसको क्या कर दिया, वैल्यूज को लिख दिया, लेकिन जो डिसिमिलर थी उनको ज्वाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे नेम था तो नेम को हटा दिया।